Uzair, thank you. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director of Operations at PARSA ECHO Pakistan, the Super Hub. I would like to welcome you all to new ECHO session in series of hepatitis ECHO. और आई थिंक ये हमारा इसके बाद हमारे दो और सेशन हैं विच विल बी आफ्टर ईद एंड इट्स इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी as you are joining with the IECHO email link, आपकी attendance mark हो रही है साथ। We would also like to thank Ferosens Laboratories Private Limited for the unrestricted educational grant. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA, intending to disseminate knowledge and best practices. PARSA ECHO Pakistan started as hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. We are following the guidelines of Project ECHO with an objective that community providers learns through video technology to participate in guided practice with special mentors. They acquire new skills that allow them to treat patient otherwise referred out. Patient with chronic condition get high quality care without travel and waiting. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you are all muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME credit, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 24 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of the participants, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Dr. Zeeshan Ali, is a fellow of College of Physician and Surgeon, Pakistan, and currently working as Associate Professor of Medicine at Jinnah Sindh Medical University and Head of Medical Unit 4 and Medical ICU Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, Pakistan. He has been involved with PARSA ECHO Pakistan since the very beginning and been a very true ECHO champion. He is the ECHO lead in the province of Sindh and has been keen interest in medical education. Currently, he also holds the portfolio of Senior Vice President, Pakistan Society of Hepatology. He is responsible for overseeing all the projects related to Sindh and enrollment of participants locally. So without further delay, I will hand over to Dr. Zeeshan. Dr. Zeeshan. Thank you, Kiran, for the introduction. We are going to talk today on an important topic, which is immune suppression in patients with. Let me share the screen first. So we are going to talk about immune suppression in patients with hepatitis B, either receiving immunosuppressive therapy as rheumatological disease patients or chemotherapy as the case different cancer patients. This is important in context of we don't talk about these issues with hepatitis C or when we talk about hepatitis C or other many diseases, because remember that hepatitis B is a DNA virus and most of the time incorporates into the patient's DNA, and there is persistence of covalently cccDNA within the genome, host genome, and the cells. Even if the virus is inactive, it's not replicating, PCR is negative, ALT remains normal, the virus persists. And this is where the importance of this virus comes, because as it is going to persist for a very longer period over the of the life, when the person suffers from any cancer or a disease, hematological disease where immunosuppressive therapy may be planned or a transplant is planned, these patients, this virus can get activated. And this reactivation of hepatitis B have led to acute fulminant hepatic failure,
have been associated with mortality and can have significant morbidity in these patients. So this concept is not new, but reactivation of hepatitis B takes place in so-called functional cure patients with hepatitis B surface antigen negative and anti-HBs positive patient. But on this still because the first publication probably came from the Asia Pacific region, which is the most prevalent hepatitis B population in early 90s, that the patients who suffered from leukemia and received chemotherapy had developed hepatitis B related acute hepatitis again after so-called cure of that hepatitis B in their early life. And from there, there has been a series of publications, and it has been reported to 50 to 100% of these patients with leukemia receiving chemotherapy developed reactivation of hepatitis B surface antigen positive patients. So it is a very important issue, and Pakistan remains in one of the most prevalent countries of the world where the hepatitis B is still persistent, and we will continue to face this problem. And with more and more daily new chemotherapies coming, new immunosuppressive therapies coming, this question will keep on being addressing, and the new knowledge would be updated periodically. So that makes the case that we should keep on revising this topic. So I'll be talking on hepatitis B and immunotherapy chemotherapy, and the basic concept of what happens with hepatitis B. HCV or HBV induced hyperacute innate immunity against hepatitis B and C, or when it is co-infected. What happens there is when we suppress the immune system, what is happening is proliferation of the virus takes place because the immune system has actually contained that virus. When there is a co-infection, one virus is predominant, another one becomes dormant. आजकल क्योंकि क्रिकेट का सीजन है तो उसको इसी तरह से रहते हैं कि जब दो वायरस एक साथ इन्फेक्ट होते हैं, एक लिवर को इन्फेक्ट करते हैं, तो एक जो है थोड़ी सी फास्ट इनिंग खेल रहा होता है और एक जो है वो विकेट के ऊपर रोटेट करता है. तो हेपेटाइटिस बी बिकॉज इट प्लेज ए लॉन्गर इनिंग, it is not there for a shorter period of time. It always got remain dormant in a co-infection situation. May it be B or it may be C or it may be an HIV patient most of the time. तो वो वायरस सप्रेस हो जाता है. लेकिन जब आप इम्यूनो सप्रेशन देते हैं तो वायरस की प्रोलिफरेशन इज द फर्स्ट स्टेज, जिसमें बहुत तेजी से वायरस की प्रोलिफरेशन बढ़ती है, एंड दैट इज द टाइम के एचपीवी डीएनए जो है वो रीअपियर होना शुरू हो जाता है. इवन सरफेस एंटीजन अगर पॉजिटिव एंटी एचपीएस पॉजिटिव आ गई थी तब भी बिकॉज ऑफ द इम्यून सप्रेशन वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम हो जाती है. और उसके बाद जैसे ही आप क्योंकि इम्यून सप्रेसिव थेरेपी या कीमोथेरेपी देते हैं तो उसका एक इंडक्शन फेज होता है और एक उसका फिर जो है वो कंटिन्यूएशन फेज होता है, या वो थोड़ी देर पीरियोडिक जिसे कहते हैं ना पल्स थेरेपी के बाद उसको वापस विड्रॉ किया जाता है टू रीगेन द इम्यून सिस्टम को. तो दिस इज हाउ द इम्यूनोथेरेपीज आर बीइंग गिवन, कि वो पल्स की सूरत में दी जाती है कि कुछ अरसे के लिए जो है ना इम्यून सप्रेस को पैरालाइज किया जाता है और फिर उसको दोबारा से रीएक्टिवेट किया जाता है. तो जब सप्रेस किया जाता है उस टाइम पे वायरस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही इम्यून सिस्टम को रिएक्टिवेट किया जाता है तो लिवर डैमेज बढ़ जाता है. तो सीवियर किस्म का जो है हेपेटाइटिस आता है, दैट कैन लीड टू हेपेटिक फेलियर, दैट कैन लीड टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस और एक्यूट हेपेटाइटिस, और वो एक्यूट हेपेटाइटिस के एपिसोड्स के साथ आ सकते हैं. सो दिस रिमेन्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंज इन दीज पेशेंट्स. और यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम हेपेटाइटिस बी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस बी को कंटेन करने के लिए जो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसमें इम्यून सिस्टम के अंदर हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है उसका लिंक नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू, फिर टी सेल फंक्शन, कि उसमें हेल्पर सेल्स बनते हैं और साइटोटॉक्सिक सेल्स बनते हैं, और उसके साथ बी सेल का फंक्शन जिसमें कि एंटीबॉडीज बनती हैं. तो ये पूरा का पूरा आर्मामेंटेरियम इम्यून सिस्टम का यूज होता है हेपेटाइटिस बी के वायरस को कंटेन करने के लिए. तो ये उस रेलेवेंस में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बात जब हम इम्यूनोथेरेपीज देते हैं वो किसी भी सिस्टम को टारगेट कर रहे हो, उसमें जो है वो हेपेटाइटिस बी का कुछ ना कुछ जो है वो रोल होता है, और हेपेटाइटिस बी के में को कंटेन रखने के लिए कोई ना कोई एक जिसे कहते हैं ना अपना रोल प्ले कर रहा होता है. तो वो रोल क्योंकि सप्रेस होता है
तो हेपेटाइटिस बी की रेप्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, वायरस जो है वो अपीयर हो जाता है। तो दैट इज अगेन कि क्योंकि इसका इम्यूनिटी जो अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी का जो हमारा प्रोसेस है इम्यून सिस्टम का, वो मुख्तलिफ लिम्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो किसी भी लिम्ब को आप टारगेट करती है हेपेटाइटिस बी की अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो कमजोर पड़ती है और वायरल रेप्लिकेशन बढ़ जाती है इसमें। सो कमिंग टू द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, क्या सब लोगों में एक बराबर ही रिस्क बढ़ता है? क्या सब लोग एक जैसे ही जिससे कहते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी किस्म की इम्यून रिस्पॉन्स थेरेपी को? तो दैट्स इज नॉट ट्रू। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पता है कि बॉडी टू बॉडी रिएक्शन होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं, और उसके बाद का डिजीज का अपना लोड होता है जो कि डिक्टेट करता है कि what would be the individual person's response to certain kind of stress. That is true again for the immunosuppressive therapy in hepatitis B, कि उसमें कुछ वायरोलॉजिकल फैक्टर हैं, वायरस जो कि जिसने इनिशियली इन्फेक्ट किया हुआ था उसका क्या स्टेटस था। उसके बाद कुछ होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं कि होस्ट के अंदर क्या प्रॉपर्टीज थी, उनका रिएक्शन किस तरह से था। एंड देन एचबीवी रीएक्टिवेशन रिस्क बाय इम्यूनोसप्रेशन के, इम्यूनोसप्रेशन कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल की जा रही है, और वो प्राइमरी डिजीज जिसके लिए इम्यूनोसप्रेशन दी जा रही है वो कैंसर है या वो कोई रिमेटोलॉजिकल डिजीज है, उसकी अपना डैमेज कितना है, उसका अपना जिसे कहते हैं प्रोग्नोसिस क्या है, और वो खुद क्या लिवर को इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये तीन बेसिक फैक्टर हैं जिसे इम्यून सप्रेशन की जो है वो आउटकम जो है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पेशेंट्स में जो है उसका पता चलेगा। तो सबसे पहले तो सरफेस एंटीजन स्टेटस सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सरफेस एंटीजन एज यू ऑल नो कि सरफेस एंटीजन इज ए मार्कर ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, वायरस ऑलरेडी एक्टिव है, रेप्लिकेट कर रहा है। तो जो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट है वो मैक्सिमम एट रिस्क होते हैं। देन वायरल लोड, इनिशियल वायरल लोड जिसका जो है वो 200 इंटरनेशनल यूनिट है, उसके मुकाबले में उसका जिसका इनिशियल इम्यून सप्रेशन से पहले ही वायरल लोड 2 लाख है, इट वुड बी डिफरेंट कि वो जो रिप्लिकेशन स्टेज है जितनी ज्यादा रिप्लिकेशन मौजूद है उतना ज्यादा रीएक्टिवेशन का जो है या लिवर डैमेज का रिस्क होगा इम्यूनो सप्रेशन के साथ। फिर ई एंटीजन स्टेटस एज यू नो कि ये जो है बॉडी लिवर डैमेज जो है वो ज्यादा एग्रेसिवली हो सकता है एंटीजन पॉजिटिव डिजीज पेशेंट में। और एंटी एचबीएस स्टेटस कि उसका इनिशियली इम्यून सिस्टम कितना तो इफेक्टिव है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं वायरस के ऊपर कि वायरस किस तरह का है। जीनोटाइप्स के अक्रॉस देयर हैज बीन डेटा बट देयर इज नॉट कन्विंसिंग कि डिफरेंट जीनोटाइप्स कितना तो इफेक्ट कर रही हैं। फिर ज्यादातर डेटा जो है वो एशिया पैसिफिक का है, और वहाँ पे एक जो है जीनोटाइप 1 और 4 ज्यादा देखी गई जाती है। सो दैट अगेन रिमेन्स के जो जीनोटाइप का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट अभी तक जो है वो देखा नहीं गया है। लेकिन हाँ वायरल लोड का एचबीएस एंटीजन का जो है लोड वो मैटर करता है, क्योंकि वो रेप्लिकेशन बता रहा है, और जितनी ज्यादा रेप्लिकेशन है उतना ज्यादा रिस्क जो है वो डैमेज का रेप्लिकेशन के साथ होता है। फिर कोई इन्फेक्शन मैटर करते हैं कि अगर एक से ज्यादा हिट मौजूद है ऑलरेडी लिवर पे, तो तीसरी हिट जो होगी वो इम्यून सप्रेशन के थ्रू होगी। तो दैट अगेन, और रिमेंबर ये सारी जितनी इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं होती हैं ये सब की सब जो है वो डायरेक्टली लिवर को इफेक्ट भी कर सकती हैं और लिवर डैमेज खुद भी कर सकती हैं। Host factors, male gender are more at risk, African race is more at risk, again older age is a risk। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिरोसिस, अगर लिवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें मजीद डैमेज होने का जिसे कहते हैं ना मार्जिन कम है। तो दैट मीन्स कि अगर ऑलरेडी सिरोटिक पेशेंट होगा तो उस पर डैमेज ज्यादा हो सकता है। एंड प्राइमरी डिजीज जिसको आप जो है इम्यूनोसप्रेशन करने लगे हैं वो उसका कितना एग्रेसिव कोर्स है, वो उसकी प्रोग्नोसिस अपनी कितनी है, उसका सर्वाइवल रेट क्या है, ये सब चीजें मैटर कर रही होंगी कि पेशेंट का आउटकम क्या होगा आफ्टर द इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी। और जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन जब हम करेंगे तो ये फैक्टर्स को हमें याद रखना होगा। फिर टाइप ऑफ इम्यून सप्रेशन क्या है, कि बी सेल सप्रेशन कर रहा है, टी सेल सप्रेशन कर रहा है, कितनी डिग्री ऑफ सप्रेशन कर रहा है ये भी मैटर करता है। कि जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है उसकी इम्यून सप्रेशन डिफरेंट होती है, जो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है उसकी इम्यून सप्रेशन डिफरेंट होगी। सो दिस वुड वेरी। एक हेमेटोलॉजिकल जिसे कहते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जो इम्यून सप्रेशन है वो डिफरेंट है, जो एक लो ग्रेड लिम्फोमा होगा उसकी इम्यून सप्रेशन डिफरेंट होगी। देन देयर आर न्यूअर ड्रग्स के इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स और जो है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स जो कि रिलेटिवली milder immunosuppressive हैं, but still they are the drugs which interplay with the immune system and that can lead to
the activation of hepatitis B virus within the body. So coming to the case, और ये interactive होगी. I invite you all to unmute your mic कि आप इसके ऊपर मुझे जो है अपना interaction दें, और one at a time I would request. So I'm going to present this case. This is a 45-year-old lady recently diagnosed as B-cell lymphoma. She was hepatitis B surface antigen negative, anti-HBs positive, and her relatives are normal. Her physician is planning to start her on chemotherapy, and the planned chemotherapy is rituximab. अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें क्या रिस्क हो सकता है आपके ख्याल में, इस पेशेंट को के लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए. Anybody who could raise hand or unmute their mic and comment on this. Can we have a comment please इसके ऊपर के इस पेशेंट में हेपेटाइटिस रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से क्या रिस्क है और उसके अंदर क्या एडवाइस होनी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. भुट्टा साहब कैसे हैं? जी खैरियत सर. सर ये इसमें चूंकि HBS जी नेगेटिव है और एंटी HBS पॉजिटिव है, मीन्स एंटीबॉडीज हैं इसमें, तो इसलिए मेरा ख्याल है इसको जो है कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए. कोई रिस्क तो नहीं होना चाहिए रीएक्टिवेशन का. Anyone else who want to comment? Excellent, Bhutta sahab. Thank you very much. Can you have any other comment या कोई disagreement या agreement of the Bhutta साहब ने जो comment किया है? खैर, anyway, this lady came back 8 weeks later. Bhutta साहब ने जिस तरह से कहा था कि उनको स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो उनको oncologist ने स्टार्ट कर दी rituximab. 8 weeks later, she presented with jaundice, altered mental status. Now relative shows ALP of 8,951 and INR is 1.9. Surface antigen is now positive again, and HBV DNA is 97,000. So this is where we have to be very careful in hepatitis B patients, because 17% even with anti-HBs positive patient can have reactivation, and though it is not very common, but in patients who are having immune suppression with rituximab or hematological stem cell transplant where the maximum immune suppression is taking place, they even die of liver failure. So we have to be sure if there is a risk, still exposure, this patient may be a case of preemptive or prophylactic hepatitis B therapy. We will be discussing later कि preemptive क्या है और prophylactic क्या है. लेकिन the message here is कि surface antigen negative, anti-HBs positive, HBV DNA negative patient with normal liver and normal जिसे कहते हैं liver biochemistry, this patient can end up with permanent hepatic failure as well. So any exposure of hepatitis B can have that. We will discuss later कि इसको risk stratify कैसे करें, जो हमने शुरू में आपको दिखाया कि how to decide कि किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए. Moving on to guidelines क्या कहती हैं कि screen for hepatitis B surface antigen and exposure as well. anti-HBA core अगर आपको याद हो is a marker of exposure to hepatitis B. hepatitis B surface antigen negative है, anti-HBs positive है, तो ये तो immune status बता रहा है ना. But what you have to ensure is whether or not this patient has been exposed to the virus. क्योंकि जो वैक्सीनेटेड लोग होते हैं उनका भी तो सरफेस एंटीजन नेगेटिव आना है और एंटी-एचबी पॉजिटिव आना है. लेकिन ये फैसला करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या प्रीवियस एक्सपोजर है या नहीं है. क्योंकि अगर तो प्रीवियस एक्सपोजर है तो फिर इस पेशेंट में कहीं ना कहीं कोई रिस्क जरूर है. अब फिर आप ये रिस्क स्ट्रेटिफाई करके बताएंगे कि इसको प्रोफिलैक्टिक या प्रीएम्प्टिव थेरेपी पे रखना है. ठीक है.
So before going to any chemotherapy or any immunosuppressive therapy, all patients should be checked for current replication, viral replication and previous exposure. ये दोनों चीजें चेक होना बहुत जरूरी है any patient who is going on immunosuppressive or cytotoxic therapy. ठीक है. प्रोफेलिक्सिस जो है, जो दवाएं हमारे पास 3 मार्केट में हैं, इसको जो मेन इसके ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज एंटाकाविर, टैफ और टीडीएफ, जो टेनोफोविर एलाफिनामाइड एंड टेनोफोविर डाइप्रिफॉक्सिल, ये मौजूद हैं. और अगर हम शुरू करने का डिसीजन ले रहे हैं तो 6 से 12 महीने आफ्टर द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हैव एंडेड, उसके बाद तक कंटिन्यू करनी है, 6 to 12 months. So that's the AACD गाइडलाइन. मैं स्विच करता रहूंगा AACD गाइडलाइन, पार्सल गाइडलाइन और ईजल गाइडलाइन में, लेकिन वो रेफरेंस मौजूद होगा आपको जो है, जस्ट फॉर द give you a clue what we are talking about. Here is a PARSEL guideline. This is what it says again, the same thing. Surface antigen and go prior to initiation of immunosuppressive therapy. If surface antigen positive, any DNA level should get a prophylactic therapy for 12 months after the completion of the immunosuppressive therapy. If a surface antigen negative, anti-HBV core positive, as per HBV DNA, HBV DNA detectable, treat similarly as HBs antigen positive, that is prophylactic. And if HBV DNA undetected, ALT की बेसिस पे रिएक्टिवेशन के लिए फॉलो करते हैं. आई एम सॉरी. सो जो अब क्वेश्चन क्रिएट होता है, ये प्रोफिलैक्टिक थेरेपी क्या है और प्रीएम्प्टिव थेरेपी क्या है. अगर हम ये डिसाइड करते हैं सरफेस एंटीजन पॉजिटिविटी की बुनियाद के ऊपर कि पेशेंट को स्ट्रेट अवे शुरू कर देनी चाहिए, whatever the disease status is, this is called prophylactic therapy. अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये एट रिस्क है लेकिन इसको मॉनिटर करेंगे, अगर इसका डीएनए पॉजिटिव आएगा तो फिर हम शुरू करेंगे, दिस इज प्रीएम्प्टिव थेरेपी. ठीक है ना. तो ये दो बेसिक डिफरेंस है प्रीएम्प्टिव एंड प्रोफिलैक्टिक थेरेपी में. प्रीएम्प्टिव थेरेपी हम थोड़े से लो रिस्क पेशेंट के लिए यूज करते हैं और प्रोफिलैक्टिक थेरेपी रिलेटिवली हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं. अब आ जाते हैं केस नंबर 2. आई वुड एक्सपेक्ट कि हमें कुछ रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि अगर हम इंटरेक्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है हम अपने माइंड से चीजों को क्लियर करते चलेंगे और फिर समझ में आसानी आएगी. Now coming to this 34-year-old lady recently diagnosed with SLE, lupus nephritis. She was found to be surface antigen positive during her last pregnancy. Her LFTs are normal, E antigen is negative, anti-HB is positive, anti-HB core is positive, HBV DNA is not detected. तो हेपेटाइटिस बी के कॉन्टेक्स्ट में अभी इसको कोई जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, इफ वी टॉक अबाउट इन आइसोलेशन की हेपेटाइटिस बी है. बट व्हाट हर फिजिशियन इज प्लानिंग इज कि प्रेडनिसोन 30 मिलीग्राम बीडी स्टार्ट की जाएगी. तो नाउ अगेन आई इनवाइट माय ऑडियंस जो है कि मुझे ये बताएं कि इस पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी के कॉन्टेक्स्ट में अब आप क्या एडवाइस करने लगे. Again, I would expect some responses, so we can make this maximum use of this class. Unmute your mic and comment. कोई नंबर नहीं मिल रहा है, कोई पास फेल नहीं हो रहा, ये इम्तिहान नहीं चल रहा. वी आर डिस्कसिंग टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे जो है इन पेशेंट्स को मैनेज करेंगे. एनीवन हु कैन कमेंट ऑन के इस पेशेंट में हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए. We can start the prednisolone. We can start the prednisone. Again, we don't need to do anything for the hepatitis B at this point. Because HBDN is negative, so we can start the prednisolone at this moment. भी के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे इस पेशेंट को, हमें क्या उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, और अगर मॉनिटरिंग करनी है तो क्या मॉनिटरिंग करनी होगी. ये पेशेंट आपको हेमेटोलॉजिस्ट ने भेजा है कि यार इसका बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, मुझे बताओ इसका क्या करना है. इसका डीएनए में मॉनिटर करना चाहिए मेरे ख्याल में. तो आप मॉनिटरिंग पे रखेंगे और अगर डीएनए पॉजिटिव आता है तो फिर आप क्या करेंगे. अगर से फॉर एग्जांपल 3 महीने के बाद पॉजिटिव आ जाता है तो एएलटी उसी तरह से एएलटी नहीं बढ़ा है लेकिन एचबीवी डीएनए पॉजिटिव आ गया है तो फिर क्या करेंगे हम.
एनी मतलब सर इसका एंटी एचबीसी जो है ना, कोर एंटीजन पॉजिटिव है, इसलिए मेरा ख्याल है इसको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी चेक करते रहना चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इम्पोर्टेंट है। तो इस मॉनिटरिंग को करने को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव थेरेपी। क्या आप ये चाह रहे हैं कि हम इसको प्रीएम्प्टिव थेरेपी पे रखेंगे जी और इस प्रीएम्प्टिव। पेशेंट को जी एक्सीलेंट, सर। थैंक यू जनाब। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट गाइडलाइंस एक्चुअली से अबाउट दिस केस। तो अगेन इट्स AACLD गाइडलाइन। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या कीमोथेरेपी के जब आप शुरू करने लगे तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, कोर पॉजिटिव अगर पेशेंट आपका है तो इसको आप प्रोफिलैक्टिक थेरेपी रखते हैं, न्यूक्स देते हैं। अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, कोर पॉजिटिव आता है, तो इसको अगेन इन सर्टेन पेशेंट्स, अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन हाई रिस्क और लो रिस्क है, सिरोसिस और नो सिरोसिस है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप प्रोफिलैक्टिक या प्रीएम्प्टिव थेरेपी पे रखेंगे। अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रीएम्प्टिव थेरेपी है, और अगर हम स्ट्रेट अवे शुरू कर रहे हैं तो प्रोफिलैक्टिक थेरेपी है। यहाँ पे डिसीजन ये भी लेना पड़ता है, दो चीजों के ऊपर मेजर डिसीजन होगा। ए, लिवर स्टेटस क्या है, बी, उसका इम्यून सप्रेशन का लेवल क्या है, कौन सी इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दे रहे हैं। तो अब ये क्योंकि मैं 2-3 दफा रिपीट कर चुका हूँ कि हम दो कौन सी इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी दे रहे हैं, तो आई शुड बी शोइंग कि व्हाट इज द, जिसे कहते हैं गाइडेंस डॉक्यूमेंट, जिसकी बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी पे क्या लेवल ऑफ रिस्क है रीएक्टिवेशन हो। डिजीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वन इज सरफेस एंटीजन पॉजिटिव डिजीज, वन इज कोर पॉजिटिव डिजीज, सरफेस एंटीजन नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब सरफेस एंटीजन पॉजिटिव इज इक्वल टू एचबीवी डीएनए पॉजिटिव है। अगर तो जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर डीएनए पॉजिटिव आ जाए, सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, तो एक बराबर ट्रीट करते हैं। तो रेप्लिकेशन मौजूद है अगर, तो वो ये वाला एल्गोरिदम फॉलो होता है। और अगर रेप्लिकेशन की एविडेंस नहीं है, एक्सपोजर की एविडेंस है, तो ये होता है। नाउ नोबडी इन द वर्ल्ड, मेरा ख्याल है कि इसे मैंने कॉपी किया हुआ है, और इसमें यू कैन सी ये एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिटक्सीमैब वगैरह, जो इसका पहला केस था हमारा। यहाँ पे आप देखें स्टेरॉइड हायर डोज मोर देन 20 मिलीग्राम इंटेंडेड टू बी यूज मोर देन 4 वीक्स। अब हमारा जो केस है वो है SLE का। SLE का मतलब ये हो गया कि ये पेशेंट बहुत लंबे अरसे स्टेरॉइड पे रहेगा, और हम इसको SLE के अंदर आमतौर पे जब नेफ्राइटिस आ गया ना, तो नेफ्राइटिस इज ऑर्गन थ्रेटनिंग डिजीज। ऑर्गन थ्रेटनिंग डिजीज के अंदर हो सकता है हम लेटर ऑन इसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी भी दें, या हो सकता है टू बिगिन विद इस पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इम्यूरान या माइक्रोफिनुलेट वगैरह ऐड की जाए। सो दिस पेशेंट वुड बी ऑन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। तो ये हाई रिस्क में क्लासिफाई हो रहा है यहाँ पे। मोर देन 20 मिलीग्राम फॉर मोर देन 4 वीक्स अगर इंटेंडेड है। एंटी TNF एंटीबॉडीज, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है, here is very important, DA for HBV infection in cirrhotic patients, that again is very high risk। नॉन सिरोटिक्स में है, जिसमें कि एप्लीकेशन बहुत कम है, वो यहाँ पे आप देखें लो रिस्क में आता है, कि नॉन सिरोटिक पेशेंट जिसमें क्वांटिटेटिव सरफेस एंटीजन लेस देन 10 आती है, इन दैट केस या स्टेरॉइड अगर लो डोज के अंदर है, दैट अगेन एजाथाइप्रिन मिथोट्रैक्सेट लो रिस्क है। ठीक, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको हमें रेफर करना चाहिए, ऑल ऑफ अस हु आर मैनेजिंग दीज पेशेंट्स, और या उनको कंसल्ट्स आती है ऐसे पेशेंट्स के लिए, तो दे शुड कीप दिस डॉक्यूमेंट विद देम, कि वो अपने आप को भी याद रखना, शायद मेरे आपके लिए किसी के लिए भी। और फिर इसमें रोजाना नई दवाएं ऐड हो रही हैं, तो जितना लेवल ऑफ इम्यूनोसप्रेशन है उतना रिस्क ऑफ रिएक्टिवेशन है, और जितना वायरल रेप्लिकेशन ऑलरेडी मौजूद है या रिस्क ऑफ, उतना ज्यादा रिस्क उसमें क्लासिफाई हुआ है। तो टैक्सीमैब इवन सरफेस एंटीजन नेगेटिव के अंदर भी जो है हाई रिस्क बन जाती है। ये जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इवन सरफेस एंटीजन नेगेटिव जो हमारा पहला केस था, उसके अंदर भी जो है वेरी हाई रिस्क हो जाता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ये डॉक्यूमेंट जो है हमें रेफर करना पड़ेगा, जिस जो हमें गाइड करेगा कि कौन सी इम्यूनोसप्रेसिव यूज हो रही है, और सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है नेगेटिव, इसकी बेसिस पे हम ये रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। हाई रिस्क को स्ट्रेट अवे
जो है वो प्रोफिलैक्टिक थेरेपी दी जाएगी कि उसको रिगार्डलेस ऑफ द लिवर स्टेटस हाई रिस्क अगर क्लासिफाई हो रहा है इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो हम उसको जो है न्यूक्लियोसाइड थेरेपी स्ट्रेट अवे शुरू करेंगे। और 12 महीने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या विड्रॉवल ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या कीमोथेरेपी जो है, हम इसको जो है न्यूक्लियोसाइड बंद करेंगे या हम डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द लिवर डिजीज कि इसको कंटिन्यू करनी है या बंद करनी है। अगर लो रिस्क है तो ज्यादातर लो रिस्क वाले सारे ही पेशेंट जो है वो प्रीएम्प्टिव थेरेपी में जाएंगे। थेरेपी का मतलब ये है कि वो मॉनिटरिंग करता है या जो है डीएनए रेप्लिकेशन होती है, वायरस रेप्लिकेट करने लगता है, तो दिस इज द टाइम यू विल स्टार्ट विद द न्यू थेरेपी। दिस पेशेंट्स वुड बी ए प्रीएम्प्टिव थेरेपी। लेकिन अगर 1 to 10% मॉडरेट रिस्क वाले आते हैं तो इनका डिसीजन बेस्ड होता है कि लिवर स्टेटस के ऊपर और प्राइमरी डिजीज स्टेटस के ऊपर, कि जो जिस डिजीज के लिए आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज कर रहे हैं, और लिवर डिजीज की अगर फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, इस पेशेंट को रिस्क नहीं दिया जा सकता, इसको आप न्यूक्स थेरेपी पे डाल दें इमीडिएटली। अगर पेशेंट सिरोटिक नहीं है तो एक फिजिशियन कॉल होती है कि या वी शुड और वी शुड नॉट स्टार्ट, कि आप इसको प्रिएम्प्टिव थेरेपी पे रखें या प्रोफिलैक्टिक थेरेपी पे रख सकते हैं इवन देन। कुछ जिसे कहते हैं थेरेपीज रिलेटिवली बिल्कुल नहीं है, जिनके ऊपर डेटा मौजूद अभी नहीं है बहुत ज्यादा कि इनका रिस्क क्या है, वो इंडिविजुअलाइज होंगी, केस टू केस बेसिस मॉनिटर होंगी, इसके ऊपर क्लियर रिकमेंडेशन मौजूद नहीं है कि इन थेरेपीज का रिस्क कितना है। सो दिस रिमेन्स एक पाजल, ये 2021 के अंदर पब्लिश्ड है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको सेव कर सकते हैं सो दैट यू कैन मैनेज योर पेशेंट्स इफेक्टिवली। अगेन ये वही एल्गोरिदम है जो हम अभी बात कर रहे थे वहां पे, ऑल पेशेंट रिसीविंग इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, बी सरफेस एंटीजन, एंटी एचबी कोर, एंटी एचबीएस, ये तीनों टेस्ट इन पेशेंट्स के होने चाहिए जो पेशेंट्स आपके पास इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी स्टार्ट करने से पहले कंसल्ट के लिए आते हैं। सरफेस एंटीजन पॉजिटिव क्वांटिटेटिव सरफेस एंटीजन लिवर फंक्शन टेस्ट शुड बी कंसीडर्ड। और अगर फाइब्रोसिस की असेसमेंट कर रहे हैं आप, और जो प्रीवियस चार्ट हमने देखा था उसकी बेसिस के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करें, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। अगर हाई रिस्क है तो स्ट्रेट अवे न्यूक्स, अगर लो रिस्क है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, एंटी एचबी और एंटी एचबी कोर पॉजिटिव है, तो फाइब्रोसिस नहीं है तो मॉनिटर कर ले। लेकिन अगर इवन लो रिस्क के अंदर फाइब्रोसिस है तो न्यूक्स दे दें आप। मॉडरेट रिस्क वालों में 1 to 10% वाले में सरफेस एंटीजन अगर पॉजिटिव है तो आप न्यूक्स दे देते हैं, सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, कोर पॉजिटिव है, तो फाइब्रोसिस की बुनियाद पर फैसला करते हैं कि अगर फाइब्रोसिस है तो इसको प्रोफिलैक्टिक दें, फाइब्रोसिस नहीं है तो इसको प्रीएम्प्टिव थेरेपी दें। ये AASLD गाइडलाइन है, सॉरी ये पाजल गाइडलाइन है, जो कि ये इसकी गाइडेंस दे रही है कि हाउ टू मूव ऑन इन दीज पेशेंट्स। लेकिन ये रिस्क को आइडेंटिफाई करना हाई, मॉडरेट और लो वुड बी बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट कि यहाँ पे रिस्क होगा सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, नेगेटिव, और फिर कौन सी थेरेपी आप करने जा रहे हैं उसकी बेसिस पे ये हाई रिस्क में आता है, मॉडरेट में आता है या लो रिस्क के अंदर आ रहा है। नाउ कमिंग टू अनदर केस, आई होप कि कुछ जो है एड्रेनलिन लेवल ऊपर चढ़ा होगा, आई विल गेट ए बेटर आंसर, कुछ इंटरेक्टिव आएगी क्योंकि रिलेटिवली कॉमन केस आ गया अब आपके पास। नाउ दिस इज ए 57-year-old male referred with surface antigen positive report, E antigen is negative, anti-HB is positive। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी अगेन नेगेटिव है, एंटी एचसीवी पॉजिटिव था, एएलटी 65 है, एएसटी 82 है, प्लेटलेट काउंट 97 है, एचसीवी आरएनए इज डिटेक्टेड, एचबीवी डीएनए इज 234 पॉजिटिव है लेकिन लो पे है, एंटी एचडीवी इज नेगेटिव है, ये दोबारा लिख दिया हमने। Albumin is 2.8, INR is 1, ultrasound liver shows small nodular liver with portal vein of 1.2। जी जनाब, अब क्या करना चाहिए इसमें? Isn't it a simple one? Anyone? HCV ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए और HPS को मॉनिटर करना चाहिए। जी बशारत साहब, thank you very much. Anyone else who want to contribute, please? कोई और कमेंट? मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी आपने जीशान पुट किया है। मैं सारों से कहूंगा कि आप सिर्फ इस वक्त जो टॉपिक ऑफ है दिस डिस्कशन
उसके अलावा भी देखें कि आपको हमने पहले क्या बताया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का जो ट्रीटमेंट है वो कब शुरू करना होता है, कहाँ पे उसके वायरस लोड को लिफ्ट करानी होती है और कहाँ पे उसके वायरस लोड के बगैर भी आपने देखना होता है। तो जब भी पेशेंट हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का आपके पास आ रहा है तो आपने ये भी देखना है कि वो उसको आप कहाँ पे स्टेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइब्रोसिस। हमने बात की हुई है एप्री स्कोर के ऊपर, हमने बात की हुई है फाइब्रोसिस स्कैन के ऊपर, और हमने आउटराइट सिरोसिस पे बात की है कि हेपेटाइटिस बी। तो अब आप, एक तो आपका टॉपिक है इम्यूनोथेरापी और कीमोथेरापी, और एक, अगर 1 मिनट के लिए इग्नोर भी कर दें तो आप देखें कि ये बंदा कहाँ पे स्टैंड करता है, ये जो पेशेंट है हेपेटाइटिस सी के भी कॉन्टेक्स्ट में और हेपेटाइटिस बी के भी कॉन्टेक्स्ट में। ये जहन में रखते हुए कि हेपेटाइटिस सी का जो इलाज है वो फाइनाइट ड्यूरेशन का होता है, 3 या 6 माह का, और बी का ट्रीटमेंट इनडेफिनेट होता है। तो इसके ऊपर जरूर आप फोकस करें, जो भी है। जी जीशान। जी एक्सीलेंट सर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग आउट। मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम मिला होगा, कुछ लोगों ने कुछ सोचा होगा। आई होप आई गेट सम आंसर, क्योंकि ये केस तो प्रॉब्ली एवरीवन ऑफ अस हु इज managing liver clinics and hepatitis patients, almost everyone would have come across this. कोई random thoughts चैट में डाल दें, ओनली फॉर मी, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, एनोनिमस हो जाएगी। बट एनीवन यू कैन, अगर आप चैट में भी डाल देते हैं तो आई कैन रीड थ्रू द चैट। Let's see, we have got a message. Should be treated for hepatitis C. Patient is decompensated. B load is less than 2000. तो बी का क्या करें? सर ये सी का भी ट्रीटमेंट चलना चाहिए और हेपेटाइटिस बी का भी साथ देना चाहिए उसको, क्योंकि इसका जी, एंटी ज्यादा है और एंटी एच बी नेगेटिव है। लोड किसका ज्यादा है? एएलटी और एएसटी ज्यादा है मैंने कहा, तो हाँ, इसलिए एसडीएलबी। हाँ जी। एक्सीलेंट। देखिए यहाँ पे हमने जो लोड असल तो भी डायरेक्ट कर रहे थे, जो डीएनए लोड, हाँ जी 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 अनुर साहब, जी, बात कंप्लीट करें। मैंने कहा डीएनए लोड तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्टिवेशन है उसकी 65 और 82 एएलटी एएसटी आ रहे हैं, और प्लेटलेट काउंट भी डाउन है। इसलिए मेरा ख्याल है इसको हेपेटाइटिस बी जो है उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो भी चलना चाहिए, और हेपेटाइटिस सी का भी चलना चाहिए, और जो इसमें दो, जी जी अनुर साहब, इसमें इसमें दो जो तीन चीजें देखें आप, इस डेटा के अंदर आपने देखनी है। एक तो ठीक है, हेपेटाइटिस का पेशेंट पीसीआर पॉजिटिव है, ट्रीटमेंट मांगता है, ट्रीटमेंट देंगे। इसमें तो कोई वो बात नहीं है कि सी की ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए सी की ट्रीटमेंट। हाँ, ये पेशेंट जो है, आप इसमें देखें कि इस पेशेंट का एएलटी एएसटी रिवर्स है, ठीक है, इसके प्लेटलेट लो है, इसका एल्बुमिन लो है, इसकी पोर्टल डायलेटेड है, तो वी डोंट नीड एनी एफपी और फिफ्टी फॉर एनीथिंग। दिस पेशेंट इज सिरोटिक। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेशेंट सिरोटिक है, और सिरोटिक पेशेंट में एक हेपेटाइटिस बी के क्या डीएनए लेवल मैटर करता है उसकी ट्रीटमेंट डिसीजन पर? नहीं नहीं मैटर करता, मेरा ख्याल है इसको नहीं स्ट्रेट वे करता। स्टार्ट करना चाहिए। अभी जो 2023 की गाइडलाइन है उसमें तो ये कहते हैं कि जी अगर पेशेंट सिरोटिक है, एस्टैब्लिश हो गया है पेशेंट सिरोसिस है, तो उस केस में पीसीआर इवन नेगेटिव भी है तो आप लाइफ टाइम थेरेपी दे दें। बी के केस में तो ये पेशेंट तो इंडिपेंडेंटली हेपेटाइटिस बी की थेरेपी वारंट कर रहा है। लेकिन क्योंकि आज का हमारा टॉपिक था हेपेटाइटिस बी इम्यून सप्रेशन, जो क्योंकि मैं गाइडलाइन प्रेजेंट कर रहा हूँ वो फाजिल की 2021 की गाइडलाइन है, उस टाइम पे ये गाइडलाइन हेपेटाइटिस बी के लिए मौजूद नहीं थी कि आप सिरोटिक पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ एचबीवी डीएनए ट्रीट करें। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर तो पेशेंट सिरोटिक है और उसको सी की ट्रीटमेंट देनी है, तो सी की ट्रीटमेंट डीएस जो है जो हम देते हैं, सोफेस्पेविर डेक्लेटास्पिर या सोफेस्पेविर वेल्पेटास्पिर, ये दोनों के दोनों इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं। फिर हमने डायनेमिक्स डिस्कस की थी शुरू में कि जो वायरल फैक्टर्स हैं को इन्फेक्शन के अंदर,
बी जो है वो लंबी इनिंग खेलने वाला वायरस होता है। तो जब भी दूसरा वायरस आता है ये डोरमेंट हो जाता है, इसकी एप्लीकेशन कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे वायरस को ट्रीट करने लगेंगे बी एकदम से जो है बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करने लग जाएगा और रेप्लिकेट करेगा। नहीं कर सकेंगे, ये पेशेंट आपको टाइम नहीं देगा, ही मे एंड अप इन लिवर फेलियर। कि जब आप इसको सी की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो ये 3 महीने के बाद आपके पास हेपेटिक कैप के साथ या जो है वो एसबीपी के साथ एडमिट हुआ होगा किसी अस्पताल के अंदर और एक्यूट लिवर फेलियर में होगा, एसीएलएफ में होगा, और फिर आप ट्रांसप्लांट की भाग दौड़ कर रहे होंगे। तो इस पेशेंट को अगर हमने डीए शुरू करने हैं तो साथ ही बी की ट्रीटमेंट भी शुरू करनी है, क्योंकि एंटीवायरल थेरेपीज जो सी के लिए हम दे रहे हैं वो इटसेल्फ इज इम्यूनोसप्रेसिव। ठीक है, सो फॉर दैट मैटर इस पेशेंट को ट्रीट होना चाहिए। अभी जो 2023 की गाइडलाइन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस हेपेटाइटिस सी अगर नहीं भी होता इस केस में तो ये वारंट करता था हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट, जो कि आपको असद साहब क्यों दे रहे थे कि जो आप लोग डेफिनेटली इससे पहले कर चुके होंगे कि सिरोटिक पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट क्या है गाइडलाइन कि रिगार्डलेस ऑफ एचबीवी डीएनए आप उसको ट्रीट करें, लाइफ लॉन्ग ट्रीट करें टू प्रिवेंट एचसीसी। इस पेशेंट में अगर हमने कुछ करना है तो अल्फा फीटो करना है, इसको हमने एचसीसी के लिए देखना है और उसकी एचसीसी सर्वेलेंस देखनी है। बाकी बी और सी की दोनों की ट्रीटमेंट करेंगे। सी की ट्रीटमेंट डेफिनेटली सिरोटिक पेशेंट है तो वायराइबावालिन के साथ होगी, सॉफेल्पा दे रहे हैं तो 3 महीने, विच आई प्रेफर अगेन फॉर माय पर्सनल जिसे कहते हैं ना ओपिनियन कि मैं 6 महीने वेल्पा के साथ भी देता हूँ और 6 ही महीने डेक्ला के साथ भी देता हूँ सिरोटिक डिकम्पेंसेटेड पेशेंट्स को। तो दैट्स व्हाट द ट्रीटमेंट वुड बी। इस केस में फिर हम बी और सी दोनों ट्रीट करेंगे। बी की ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ये सिरोटिक पेशेंट है और बी की ट्रीटमेंट इंडिविजुअली वारंट कर रहा है इन एनी केस। So coming to the next case, probably the last for today's case, is 27-year-old female now referred with the hepatitis B surface antigen, E antigen negative है, anti-HBV positive है, similar to last time, लेकिन इस दफा इसका HBsAg normal है, platelet count भी 333, ICV RNA detected है, HBV DNA 234 है, same, एल्ब्यूमिन भी 3.8 है ना, ठीक है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल ठीक है, इसका एलास्टोग्राफी भी ठीक है। इसमें क्या एडवाइस करेंगे? अब तो ये केस डिस्कस हुआ है तकरीबन, इसमें कोई जल्दी से मुझे बता दे कि करना क्या है हमें। अगेन chat is open, anybody who want to comment in the chat डायरेक्ट मैसेज कर दें anonymously, हम डिस्कस कर लेंगे उस पॉइंट को। क्या करना चाहिए इसमें? मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूं, अगर कोई कमेंट करना चाहे। ये एक ऐसा पेशेंट है, अगर आप इसको सेपरेटली देखें तो हेपेटाइटिस सी इज पॉजिटिव और इसको सिरोसिस नहीं है। इसको जो फाइब्रोसिस के स्कोर है या लिवर स्टिफनेस 5.6 किलो पास्कल्स है। आप देख रहे हैं अल्ट्रासाउंड पे लिवर बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल एक्ोजेनिसिटी है और ट्रांसएमिनेसिस भी नॉर्मल है। तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। तो हमारे पास अब एक नॉन सिरोटिक पेशेंट है विद गुड लिवर फंक्शन, जिसका हेपेटाइटिस सी भी पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस बी भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या अगर आप 1 मिनट बी को भूल जाएं तो क्या आप सी को ट्रीट करेंगे। इसी तरह अगर आप सी को भूल जाएं तो क्या आप बी को ट्रीट करेंगे। तो अगर तो आपको दोनों के जवाब हाँ में मिलते हैं फिर आप दोनों को ट्रीट करेंगे। अगर आपको एक की प्रायोरिटी लगती है तो फिर आप देखेंगे दूसरे का उस पर क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से आप सी का इलाज करते हैं तो फिर उसका बी पे तो कोई असर नहीं होगा। तो ये बात पिछली को इन्फेक्शन में शायद सर्वर ने जब हेपेटाइटिस बी और सी को इन्फेक्शन है इसको डिस्कस किया था। तो मैंने अब आपको काफी सारी रीडें दे दी हैं। तो अगर कोई जो है इसके ऊपर कमेंट करना चाहे, हमारी पारसा ट्रस्ट की भी टीम के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर औज, आप कुछ कहना चाहेंगी इफ यू आर विद अस? हमने कहा था चैट में ही आंसर दे दें, डायरेक्ट मैसेज वाले में कर दें, वो एनोनिमस डिस्कस होगा, वो फिर सबको जाएगी भी नहीं तो सिर्फ हमारे पास आएगी पर्सनल। सो मेनी पार्टिसिपेंट प्रॉब्ली
Anybody can comment? अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अगर आप गलत भी आंसर देंगे तो आजकल हम गलत चीजें बहुत ठीक कर रहे हैं, तो सर हेपेटाइटिस सी ट्रीट करेंगे और हेपेटाइटिस बी के लिए इसको मतलब इसको फॉलो अप में रखा जा सकता है उस ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि इसमें सिरोसिस नहीं है और डीएनए जो एचपीवी डीएनए है उसकी वैल्यू भी कम है और इसका एएलटी एएसटी रेशियो भी डिस्टर्ब नहीं है। जी, Excellent. लेकिन ये एक्सीलेंट। पेशेंट नॉन सिरोटिक है। Anyone मेरा else भी who want to comment? यही जी ख्याल है जी। जी, बिल्कुल कह रहे हैं। अच्छा, फिर अब एक इसमें जिमनी सवाल आ जाता है। हेपेटाइटिस सी है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है, और हेपेटाइटिस बी जो है उसका वायरल लोड अगर आप सिर्फ बी के ट्रीटमेंट पे देखें तो शायद आपको वेट एंड वॉच पे जाना पड़े, लेकिन जो आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ऐसा ना हो कि आप सी का इलाज करें और बी को हो जाए, तो आप टू बिगिन विद बिल्कुल ठीक है, और लेकिन आपको बी को मॉनिटर। जी जीशान, आप मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा नहीं नहीं, इट्स ओके। बेसिकली तो हमने को इन्फेक्शन है, और को इन्फेक्शन में हमें पता है कि डीएस जो हम दे रहे हैं, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं पिछले केस में कि डीएस इम्यूनोसप्रेसिव है। तो अगर हम बी को इंडिपेंडेंटली इसमें मॉनिटर करते, अगर ये बी होता सी नहीं होता सिर्फ, तो डेफिनेटली हमने इसमें वेट एंड वॉच ही करना था ना, मॉनिटर करना था। इसमें ट्रीटमेंट तो नहीं शुरू करनी थी कि नॉन सिरोटिक है, लो वायरल एप्लीकेशन है, लिवर फंक्शन ठीक है, एएलटी ठीक है, वो तो वी वुड हैव वेटेड दिस पेशेंट। लेकिन उसमें आपकी एक्सरसाइज क्या होती है कि 3 महीने के बाद एलएफटी करा के दिखा देना, 6 महीने के बाद पीसीआर एलएफटी दोबारा करा के दिखा देना। दिस इज व्हाट जनरल फॉलो अप होता है ना मॉनिटरिंग इसकी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप सी की ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, तो दो चीजें हमें याद रखनी है कि एक डोमिनेंट वायरस और नॉन डोमिनेंट वायरस का कंसेप्ट, सी डोमिनेंट वायरस होता है, तो जैसे सी को सप्रेस करेंगे बी ने बढ़ना है, ये याद रखना है हमें। दूसरा, एंटीवायरल जब आप देंगे वो इम्यूनोसप्रेसिव है इस कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। कोई इन्फेक्शन है ये, लेकिन ये है कि क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसिव है और उसका स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मौजूद है, तो जब वो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम देंगे तो बी की रेप्लिकेशन बढ़ेगी। इन दोनों सूरतों में जब बी की रेप्लिकेशन बढ़ेगी तो उसकी मॉनिटर करना है, वो मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और उसको कैसे मॉनिटर करेंगे। क्या हम थोड़े थोड़े दिन से पीसीआर कराएंगे, एलएफटी कराएंगे, या पीसीआर और एलएफटी दोनों कराएंगे, तो उसका इंटरवल क्या होगा। अच्छा, वी हैव गॉट ए कमेंट इन द चैट के you already said the co-infection of hepatitis B usually reactivate, so kindly you should treat both. Now that's a good comment, लेकिन यहाँ पे हमने मैसेज क्या दिया है कि अगर ये रिस्क सर्टिफिकेशन में जाएगा ना कि नॉन सिरोटिक सी का पेशेंट है जो कि डीए थेरेपी ले रहा है, तो अब अगर आप यहाँ पे जाते हैं जो हमारा रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में कि नॉन सिरोटिक पेशेंट आते हैं जो कि डीए थेरेपी ले रहे हैं, वो लो रिस्क में आते हैं। गोइंग बैक फर्दर टू द एल्गोरिदम के लो रिस्क पेशेंट जो कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हैं और नो एडवांस सिरोसिस हैं, तो उसको जो है आप एवरी 3 मंथ्स जो है एएलटी मॉनिटरिंग पर करते हैं। नाउ हियर इज इस एल्गोरिदम की स्पेशलाइज जिसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन क्या करनी पड़ेगी। जब आप सी की थेरेपी दे रहे हैं, वो तो सी की थेरेपी नॉन सिरोटिक पेशेंट है 3 महीने की, तो इस 3 महीने में आपने कैसे मॉनिटर करना है। इस 3 महीने में इस पेशेंट को, नॉन सिरोटिक पेशेंट को हम आमतौर पर सी की थेरेपी जब देते हैं कोई मॉनिटरिंग एडवाइस नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये को इन्फेक्शन है और जो इम्यूनोसप्रेसिव आप इम्यून सप्रेशन में जाएगा ये पेशेंट, और बी इसका को इन्फेक्शन है साथ में, तो इसको आप मंथली जो है वो एलएफटीज एडवाइस करेंगे, इसको मॉनिटर करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर द थेरेपी इसका बी का जो है पीसीआर आप करेंगे 3 मंथ्स के ऊपर, और इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द थेरेपी जिसमें हम कुछ नहीं करते उसके बाद, और 3 महीने के बाद जो है उसका एसवीआर करके बुलवा रहे होते हैं, इवन आफ्टर दैट 3 मंथ्स जो है उस दौरान भी इसको फॉलो अप जो है ना एएलटी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि फ्लेयर जो है आफ्टर स्टॉपिंग द थेरेपी जो है वो ज्यादा होता है। दिस इज कॉमन, सो दिस पेशेंट वुड रिक्वायर मॉनिटरिंग, वुड नॉट रिक्वायर एट दिस पॉइंट। इसको आप प्रिएम्प्टिव जिसे कहते हैं ना पूल में रखेंगे, इसमें आप इमीडिएटली न्यूक्स शुरू करने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन इसको हमें जो है मंथली जो है एएलटी मॉनिटरिंग पे रखना होगा। इन बिफोर एंड आफ्टर द एचईवी थेरेपी पीसीआर हमें मॉनिटर करना होगा। 3 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द थेरेपी एटलीस्ट आप मंथली मॉनिटरिंग पे रखेंगे,
पेशेंट इफ रिमेन्स लाइक दैट कि उसका एलटी नॉर्मल रहता है, एचबीवी जो है वो रिप्लिकेट नहीं होता, बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है और ट्रीटमेंट इंडिकेशन क्वालिफाई नहीं करता बी की, तो फिर आप रूटीन एचबीवी मॉनिटरिंग पे चले जाएंगे, जैसा कि हमारा रूटीन होता है 3 महीने या 6 महीने के बाद हम पेशेंट को फॉलो कर रहे होते हैं, नॉन सिरोटिक पेशेंट को जिनके एलएफटीज नॉर्मल होते हैं. So this is how this patient would be monitored for hepatitis B और hepatitis C definitely treat होगा क्योंकि PCR पॉजिटिव है, नॉन सिरोटिक है, आइडियल केस है, इसको आप ट्रीट कर लें ताकि ये पेशेंट हेपेटाइटिस सी से तो एक वायरस से तो जान छुड़ा ले. So this is again the guidance to the co-infection कि ये AACD गाइडलाइन है यहाँ पे. Measure the HCV RNA and DNA before selecting the therapeutic strategy. HCV treatment with DA is indicated for HCV in viremia. B treatment is determined by B DNA ALT level. Same criteria as mono infected. अगर B का individual criteria meet कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो इसके अंदर हमें additional B की treatment देने की जरूरत नहीं है. Monitor those not eligible for HBV treatment during HCV treatment based on HBS and TG states. 4 to 6 weeks during HCV therapy, HBV DNA लेवल यहाँ पे डबल एसिड थेरेपी कहता है. इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मेरा ख्याल है हम लोग खाली अगर एएलटी को मॉनिटर करें तो वही पॉसिबल होगा. एवरी मंथ आपको डीएनए कराना शायद इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, बट अमेरिकन गाइडलाइंस जो हैं, जो डबल एसिड गाइडलाइन ये कहते हैं कि आपको इसको एवरी 4 to 8 वीक्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो है करना है और 3 मंथ्स आफ्टर द एचबी ट्रीटमेंट जो है वो बी का करना है. सरफेस एंटीजन पॉजिटिव कोर पॉजिटिव अगर है, मॉनिटर एएलटी लेवल, यहाँ पे वही कहते हैं बेसलाइन एट द एंड ऑफ द एचबी थेरेपी एंड फॉलो अप. मॉनिटर एचबीवी डीएनए एंड इफ द एएलटी लेवल इंक्रीजेस और फेल टू नॉर्मलाइज. अगर दूसरे महीने पे आता है पेशेंट का जो है एएलटी टू बिगिन विद 21 था और 35 हो गया है और उससे जब सेकंड मंथ की थेरेपी लेने आता है तब वो जो है वो 65 हो गया है, दिस इज द टाइम यू वुड से कि नहीं ये शायद फ्लेयर में जा रहा है, इसका पीसीआर भी कर लिया जाए even if it was to begin with surface antigen negative. So that's what the guidance, WSAD guidance for BNC co-infection in this case. So in summary, all candidates for the chemotherapy or immunosuppressive therapy should be tested for HBV markers. और वो मार्कर्स खाली रेप्लिकेशन के नहीं है, वो एक्सपोजर के मार्कर भी हैं जो कि सरफेस एंटीजन भी है और कोर एंटीबॉडीज भी है. ठीक है. एंटी एचबीएस पॉजिटिव पेशेंट शुड रिसीव जो है इन जनरल प्रोफिलैक्टिक थेरेपी, और अगर कोर पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो उनको प्रिएम्प्टिव थेरेपी या प्रोफिलैक्टिक थेरेपी बेस्ड ऑन देयर रिस्क ऑफ इम्यूनोसप्रेशन रिएक्टिवेशन एंड बेस्ड ऑन द लिवर डिजीज स्टेटस. इन दो चीजों के ऊपर रिएक्टिवेशन का क्यूमुलेटिव रिस्क को देखते हुए डिसीजन हम लेंगे बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव आ जाता है, सबको आप टेस्ट करते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो उनको वैक्सीनेट जरूर करें. अगर उसको नहीं है हेपेटाइटिस बी तो उसकी प्रिवेंट भी कर लें. एंटी एचबीएस आप कराते हैं, कभी सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव है, एंटी एचबीएस भी नेगेटिव है, कोर भी नेगेटिव है, तो ये ना एक्सपोज है ना इम्यून है, तो इसको आप इमीडिएटली इम्यून तो कर दें. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. विद दैट आई वुड एंड हियर. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू आंसर. इसके अलावा अगर या कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है. अस्सलाम वालेकुम सर. सर ये जो अभी रिसेंटली अभी जो सिनेरियो डिस्कस हुआ तो इसमें वेट एंड वॉच तो करना है, किस स्टेज पे हमें लगेगा कि हमें बी का भी ट्रीटमेंट मतलब उसकी तरफ भी जाना चाहिए? इस मतलब सिनेरियो को ALT आगे जी जी मैं इसको आगे लेके चलता हूँ ना, इस सिनेरियो को आपको शुरू कर दिया सी की ट्रीटमेंट का. अब इसकी बिगिन विद एटी था 21, अगली विजिट पे था इसका 45. ठीक है, तो नाउ दिस इज द पॉइंट कि आपको लगता है कि अगर ये रिएक्टिवेशन हुई अगले बुला लें. अगली दफा जब मेक डिसीजन कि ये बी रिलेटेड है, या बाजू का एक पैराडॉक्सिकल इफेक्ट आता है जब एंटीवायरल देते हैं तो कुछ इम्यून रिस्पांस जो है सी के अगेंस्ट भी जनरेट होता है तो एलटी बढ़ता है, या कोई और जिसे कहते हैं हिट हुई है लिवर के ऊपर, तो अगर बी रिलेटेड है तो इमीडिएटली आप उसका पीसीआर कराएंगे और पीसीआर अगर उसका राइजिंग है, बढ़ गया है पहले से, तो यू वुड स्टार्ट ट्रीटमेंट. ये इसको हम प्रीएम्प्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं कि आप मॉनिटर करते हैं और द मोमेंट यू फाइंड कि ये एचपीवी रिलेटेड डैमेज हो रहा है या रेप्लिकेशन बढ़ रही है तो यू स्टार्ट विद
leads therapy for hepatitis B as well. स्टॉप करने का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि जब स्टॉप कब करेंगे, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेशन और एचसीवी रिलेटेड ट्रीटमेंट से इसका बढ़ा था, तो यू कैन मेक ए डिसीजन आफ्टर स्टॉपिंग द एचसीवी थेरेपी 6 months डाउन द लाइन कि क्या हम इसकी कंटिन्यू करें, क्योंकि जैसे ही आप एचसीवी की ट्रीटमेंट आप खत्म करेंगे तो लाइकली अगर सी की ट्रीटमेंट से रिलेटेड होगा तो एटी वगैरह सब नॉर्मल हो जाएगा, पीसीआर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, तो यू मे टेक ए डिसीजन कि ये सी रिलेटेड फ्लेयर था तो इसको हम बंद कर दें, और फिर इंडिविजुअली इस पेशेंट को डिसाइड करें कि इसको बी की ट्रीटमेंट की जरूरत थी या नहीं थी. जी आलिया, does that answer your question or query? Anyone else who want to discuss any other point? सर ये हेपेटाइटिस के मतलब तो नहीं रिलेटेड बात, पर्सनल सी बात है, माइंड ना कीजिएगा। पिछले साल आप बड़े यंग लगते थे, अब सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, ये क्या वजह है? बस भाई इसकी जमाने वजह के ये है कि फेरे हैं. आप पिछले साल भी हमारे स्टूडेंट थे, आज भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो आप हमें बहुत अरसे से देख रहे हैं एंड वी हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है। तो और मेरा लगता है कि बहरहाल ये जीशान, ये अब आप इनको अलग से जवाब देंगे इसका। नहीं सर, मेरा कहना ये है कि गेटिंग ओल्ड इज मैंडेटरी बट फीलिंग ओल्ड इज ऑप्शनल। नहीं, ही इज तो नॉट आप फीलिंग ओल्ड, ये मैं आपको बता सकता हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट. लुकिंग ओल्ड, फीलिंग ना भी हो। इसलिए सर अपना ध्यान रखें जरा। नहीं, थैंक यू वेरी मच ईशान। मेरे ख्याल में टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हियर, ये बी कॉम्प्लिकेटेड है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 1990 से हम इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और ये आगे आगे चेंज होता है। और आज भी जो हम बातें कर रहे हैं, जितनी बी की गाइडलाइंस में मैंने तब्दीली देखी है, इतनी तो कभी भी नहीं देखी। और जब मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लेट 80s अर्ली 90s में, तो तब एक डिफरेंट सिनारियो था, लेकिन बट इट कीप्स चेंजिंग। और आई एम श्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर विल बी फर्दर चेंजेस, और ये जो टाइम है ये आपके सामने होगा, ये नहीं है कि 10 साल बाद होगा, ये साल 1.5 साल में भी हम इसमें फर्दर चेंजेस देखेंगे। लेकिन यू कैन गो बैक टू द टॉक्स, अगर आपको कोई भी स्लाइड चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, उजैर और किरण कैन गाइड यू हाउ कैन यू गेट, क्योंकि कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने इसको स्टेज कैसे करना है, जिस तरह टेस्टों की इंटरप्रिटेशन है, सरफेस एंटीजन, एंटी एचबीसी जो कोर एंटीजन टोटल एंड एंटी एचबीएस, इनकी इंटरप्रिटेशन, फिर ई एंटीजन और ई एंटीबॉडी, और फिर जो बी की क्लासिफिकेशन है, ई एंटीजन पॉजिटिव डिजीज है जिसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक इन्फेक्शन। सिरोसिस को आपने कैसे पिक करना है, क्योंकि ये वो मरीज है जिनको आपने नहीं छोड़ना। और ये जहन में रखें कि हेपेटाइटिस बी जिनका वायरल लोड ज्यादा होता है, इट कैन कॉज लिवर कैंसर विदाउट प्रोग्रेशन टू सिरोसिस। On top of that, co-infections are always going to be important. Hepatitis C co-infection, और स्पेशली ये जो बेल्ट है हमारी, जहाँ पे बी, पंजाब में बी कम है लेकिन वी स्टिल सी को-इन्फेक्शंस, और इधर सिंध साइड पे भी काफी है, और वहाँ पे डेल्टा वायरस भी है। को-इन्फेक्शन को कैसे डील करना है। और ये जो जो आज का टॉपिक था, इम्यूनोसप्रेशंस, स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लोग टीके लगवाते हैं, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं जनरल प्रैक्टिस में यूज होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, आप जरूर उनके देखें कि वो कौन सी दवाइयां खा रहे हैं। अगर उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एसएलई का भी जिस तरह आज है, जो स्टीरॉयड इम्यून सप्रेसेंट्स ले रहे हैं। और ये जो स्लाइड थी जिसमें हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क चीजें, इनको अपने पास रखें। और हमने अभी तक ये अपने मेरे सामने जो कंप्यूटर है, या कोई एक वो जो कहते हैं, एक ये बूटियां सी बन के पड़ी होती हैं, जो हम बचपन में भी करते थे, कि हम देखते रहते हैं कि ये चीजें, क्योंकि ये याद रखना इतना आसान नहीं होता। तो वेन एवर यू गेट अ केस, यू जस्ट हैव अ लुक, गो बैक, हैव अ लुक, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को, कोई टेस्ट आपने मिस तो नहीं कर दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जब भी ये सिनारियो आएगा हेपेटाइटिस बी में, प्लीज अपने नियरेस्ट जो कंसल्टेंट हैं, जो लिवर डिजीज के, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एफसीपीएस और कोई और भी क्वालिफिकेशन है, जो नियरेस्ट यूनिट है, उनसे जरूर राब्ता करें। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। ये ना हो कि कोई ऐसा डिसीजन आप ले लें जो कल आप पेशेंट के लिए भी हो और आपके लिए भी उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। और ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी, वी आर देयर टू हेल्प। हमारी चूंकि जो पीएसएच है, इसकी पेनिट्रेशन पूरे पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान और उधर से खैबर से लेके कराची तक और बलूचिस्तान में। तो वी कैन गाइड यू कि अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, आपके नियरेस्ट कौन सा डॉक्टर हो सकता है जिनसे आप कर सकते हैं। और मोर अगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो यू आर मोर देन हैप्पी टू शेयर योर केसेस। इवन ये सेशंस खत्म भी हो जाएं, उजैर और किरण दे विल ऑलवेज बी एबल टू हेल्प यू, गाइड यू। आप केस करें तो हम उसको जरूर आपसे कुछ किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। So that's all from my side. Thank you, Zeeshan. And Kiran, over to you. थैंक यू डॉक्टर सर। प्लीज ये रिकन्फर्म कीजिएगा कि हमारे इस बैच के अब 2 सेशंस रह गए, डॉक्टर अदनान के साथ और प्रोफेसर काशिफ के साथ। दैट विल बी आफ्टर ईद। रमजान में तो नहीं होंगे ना? जी, रमजान में टाइम का जरा इशू है, आफ्टरनून का भी प्रॉब्लम है, और ये भी टाइम तरावियों के साथ कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत टच कर जाएगा। तो हमारी प्रैक्टिस तो यही रही है कि हम इसको ईद ईद के बाद ही करेंगे। श्योर। लेकिन अगर ऑडियंस की तरफ से कोई भी है तो यू कैन कम्युनिकेट टू देम। ये मैरी स्टूप सोसाइटी या जो बाकी है तो वी कैन ऑलवेज, अगर अगर कोई एक आधा सेशन रखना भी है, मे बी केस बेस्ड डिस्कशन का रखें, अगर हम डायडेक्टिक नहीं भी रखते तो वी कैन प्रॉब्ली फिगर इट आउट। ठीक है, वो हमारे ग्रुप बने हुए हैं मेरी स्ट्रूप्स के साथ भी, और बाकी फिर ओसन्स की तरफ से जो हमारे साथ डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है, तो वी विल बी इन टच। और वी आर ग्रेटफुल एंड थैंक यू डॉक्टर ज़ीशान, एंड वी आर ग्रेटफुल टू एंड थैंकफुल टू आवर team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan as well. So Allah Hafiz, we will meet after Ramzan most probably. Uzair, you can call off the meeting. Allah Hafiz.